how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the changing family. We already know relations takes place differently in a family. There is a huge change in families from past to present. We will know what do we need a family, what is a family tree, migration changes the face of the family, heredity and traits, changing family patterns, values taught by a family. Why do we need a family? Families are an integral part of one's life. It serves as the first school to the child where he learns about the various things. The basic knowledge about one's culture and identity comes from the family. In other words, you are a reflection of your family. All the good habits and manners one has incorporated are from their family only. Okay, देखिए एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आप और आपकी फैमिली, आप लोग जितने भी लोग रह रहे हैं तो एक साथ मिलके क्या बनते हैं, ये सारे क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं और आप उनके बच्चे हैं, तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, जैसे कि कलर हो गया, ओके, आपके नैन नक्श हो गए, जैसे कि आइज़ मिल रही है, नोज़ मिल रहे हैं, लिप्स मिल रहे हैं, बोलने के तरीके मिल रहे हैं, रहन सहन के तरीके मिल रहे हैं, हाइट मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको किससे मिलती है, अपने पेरेंट्स से ही मिलती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। Families are essential as they help in our growth. They develop us into becoming a complete person with an individual identity. Moreover, they give us a sense of security and a safe environment to flourish in. We learn and socialize through our families and develop our intellect. Constituting various members, families can be nuclear or joint or mixed, but in all their forms, families ensure they are a constant source of inspiration and support to each other. देखिए, families जो होती है, एक दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल, मतलब कि इंपॉर्टेंट होती है। ओके, आपको एज अ पर्सन डेवलप करने में फैमिली बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है, गुड हैबिट्स आपको सिखाती है। ओके, उसके अलावा जो फैमिली होती है वो कई तरीके की होती है, जैसे कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या फिर मिक्स्ड फैमिली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। What is a family tree? We have many relations in the form of father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, etc. We can show all the family members and their relationship with each other through a family tree. देखिए, हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, ओके, ये सारे लोग जो होते हैं, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, इन सबको अगर आपको जानना है तो एक फैमिली ट्री बना के आप अपनी पूरी फैमिली के बारे में जान सकते हैं। ओके, A family tree is a diagram showing the relationship between people of several generations of a family. Vishal is a boy of class 5th. He lives with his parents and grandparents. He makes his family tree as a head. देखिए, अब एक फैमिली ट्री जो होता है एक डायग्राम होता है जिसके थ्रू आप अपने फैमिली मेंबर्स को जान सकते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है विशाल का, जो कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और नीचे उनकी फैमिली ट्री दिखाई गई है। देखिए नीचे विशाल के फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. Okay, Mr. S.P. Gupta is Vishal's father and Mrs. Rakhi Gupta is his mother. Vishal can also make a family tree in a relation to his father. In the above family tree, he shows his relations with everyone. In the same way, he can make many family trees regarding his mother, grandmother और अदर फैमिली मेंबर्स. देखिए, विशाल के जो पापा हैं उनका नाम है एसपी गुप्ता और जो मदर हैं उनका नाम है राखी गुप्ता. ओके, तो विशाल अपनी फैमिली को शो करने के लिए, अपने पापा की फैमिली को शो करने के लिए तो अपने पापा की फैमिली का ट्री बना सकते हैं. उसी तरीके से अपनी मम्मी की फैमिली का ट्री बना सकते हैं मम्मी की फैमिली को शो करने के लिए, या फिर ग्रैंड मदर की फैमिली का ट्री बना सकते हैं उनकी फैमिली को शो करने के लिए. ओके, नाउ पोस्ट टू डू. Make your family tree. Stick in the given boxes. Photographs are the parents of your grandfather, your grandparents, your parents, your siblings, and then your own. It's your family tree. When you grow, you will get married. Then your wife and your children will join into this tree. So you can see that the family survives for many generations. Grandfather, grandmother, grandfather, grandmother, father, mother, your photograph, your sibling. ये आप खुद से करेंगे.
Now, migration. Generally, a family lives at one place for a long time. But when people shift their residence within or outside the country, we say that they are migrated. Thus, the act of moving from one place to another is called migration. People who migrate are called migrants. When people migrate from their country and go to another country and settle there, they are called immigrants. These immigrants are called immigrants in the country where they settle. Okay, देखिए जनरली आपकी जो फैमिली है वो एक ही जगह पे रहती है, लेकिन जब आपकी फैमिली जो है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना मतलब माइग्रेट करना होता है। ओके, अब अगर आपकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो आपकी फैमिली को क्या बोला जाएगा? माइग्रेंट्स बोला जाएगा। ओके, और अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहां पे क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट्स बोला जाएगा। ओके, नाउ जैसे कि जो लोग दूसरे कंट्री में आके सेटल हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स बोलते हैं। वही अगर आप अपनी कंट्री से जा रहे हो तो आपको एमिग्रेंट्स बोला जाएगा। ओके, पीपल माइग्रेट फॉर डिफरेंट रीजंस, बट माइग्रेशन causes problems for both the immigrants and the people who are already living in that area. These problems can include clashes of culture, lack of jobs, difficulty in understanding language barriers, and ethical differences. Migration is a common occurrence due to different reasons and the reasons are given below. देखिए माइग्रेट जब लोग करते हैं तो उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, और अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज भी देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, उसके अलावा आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ओके, अब कुछ रीजंस जिसके थ्रू आप करते हैं माइग्रेट, क्या क्या हो सकते हैं वो रीजंस? देयर आर मैनी फैमिलीज हुज चिल्ड्रन गो फार अवे टू अर्न मनी. When they get married, they shift their families. Also, some families shift from one place to another due to their transferable job. Natural disasters plays an important role in migration. For example, due to floods, tsunamis, earthquakes, etc., many people move from one place to another. Urbanization and westernization lead to the family transition. As towns and cities have most of the modern facilities, the rural population get attracted towards them. Okay, देखिए यहाँ तक देखिए कि जो फैमिलीज होती हैं वो, जैसे कि कोई मेन मेंबर है तो फैमिली के लिए पैसा कमाना होता है तो आप क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे। ओके, तो जब आप माइग्रेट कर जाते हैं तो साथ में अपनी फैमिली को लेकर भी जाते हैं। ओके, उसी तरीके से बाकी जो फैमिलीज होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बिकॉज क्योंकि इनकी जो जॉब है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जॉब की कई सारी ब्रांचेस होती है तो उसकी जगह उसकी तरह उसी के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं कि अगर सुनामी आई है, फ्लड आया है, ड्रॉट आया है तो उस एरिया में आप रुक नहीं सकते, आपको उस एरिया को छोड़ना होगा और उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जाना होगा। ओके, उसके अलावा अर्बनाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, एक प्लेस है जहाँ पे आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो आप वो वाली प्लेस छोड़ के एक ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आपको प्रॉपर आपकी नीड्स कंप्लीट हो, आपको फैसिलिटीज मिले और आप एम्प्लॉयड हो सकें। ओके, उसके अलावा देखिए आगे, जॉइंट फैमिलीज हैव जॉइंट प्रॉपर्टी एज लैंड. As the size of the family grows, the property is not sufficient to meet all their needs. So, the members divide the property and move to other places to start a new business or something else. Sometimes, people are forced to move from their land. The widening of roads, laying of railway tracks, construction of dams, demolition of slums, etc. are some of the causes of migration. देखिए, जॉइंट फैमिलीज जो भी उनके पास लैंड एरिया है, एक जॉइंट फैमिली रह रही है और जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया में जैसा कि आपकी फैमिली जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके अंकल की पापा की शादी हो गई तो उनके फैमिली में मेंबर्स आ गए, उसके बाद उनके बच्चे हो गए, तो इस तरीके से क्या हो रही है? फैमिली बढ़ रही है। तो जब फैमिली बढ़ रही है तो जो लैंड का एरिया है वो कम पड़ता जा रहा है, तो इसमें लोग क्या करते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद कहीं और जाके अपना खुद का घर लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये एक रीज़न है। उसके अलावा जो रीज़न है वो ये है कि जिस लैंड एरिया पे वो रह रहे हैं उस लैंड एरिया पे कुछ और जैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रोड बड़े
कर दिए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं या फिर डैम्स बन रहे हैं, स्लम्स बन रहे हैं, तो इसकी वजह से भी एक जगह से उस एरिया को आपको छोड़ के दूसरे एरिया पे जाना पड़ सकता है। तो ये माइग्रेशन के सारे क्या है, रीजंस है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स नो The Global Commission on International Migration was launched by the United Nations Secretary General and a number of governments on December 9, 2003 in Geneva. GCIM लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा और कुछ कंट्रीज कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा। ओके, ये हुआ था December 9, 2003 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, पोस्ट टू डू, हैव यू ऑलवेज लिव्ड एट द प्लेस वेयर यू आर लिविंग नाउ? If not, where does the family come from? Are there any of your relatives whom you never seen? Where do they live? ये आप खुद से करेंगे। Hereditary and traits. Similarities of physical appearances between family members are common. A boy or a girl may have great resemblance to his or her parents. देखिए, अगर कोई बच्चा है घर में, जैसे कि आप है, आपका आपके पेरेंट्स से रिसेंबल करना मतलब कि एक जैसा कलर होना, एक जैसी आंखें, नाक, नक्शा, बाल, ये सारी चीज़ें, तो ये कॉमन है ये चीज़ें, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं तो मैच कुछ ना कुछ चीज़ करेगी ही करेगी। ओके, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच वन एक्वायर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड traits. Every individual has a unique set of traits. You resemble with your parents because of you have inherited your hair color, nose shape and other traits from them. देखिए, हेरिडिटी क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हायर करते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे कि मैंने बताया कि एक जैसा कलर होना, नोज का शेप होना, आईज होना, ओके, हेयर्स होना, हाइट होना, ओके, इन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रेट्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ सम कॉमन ट्रेट्स मे बी द वे यू लाफ, टॉक और इवन वॉक। योर वॉइस मे हैव ग्रेट रिजेम्बलेंस टू दैट ऑफ योर फादर और मदर. When you will grow up, your height too may be almost equal to that of your mother or father. Okay, जैसे कि कुछ कॉमन ट्रेट्स जो होते हैं, जैसे कि हंसना, बात करना, बात करने का तरीका, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी हाइट जैसे कि सेम मिलेगी. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो रिजेंबल कर सकती है आपके पेरेंट्स से. ओके, let's know the traits which are transferred by the parent to its offspring through the process of fertilization is called inherited traits. okay, देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो पेरेंट से उनके बच्चों को ट्रेट्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं. ओके, changing family patterns. In earlier times, people lived together as a big joint family. Gradually, this pattern changed to the concept of small nuclear family. Members of the family shift to other city or country but maintain the relationship with the help of advanced technology and gadget like email, cellular phones, etc. They meet on social occasions like wedding, festivals, birthday parties, etc. देखिए, पहले के जो लोग थे वो एक साथ रहते थे, उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता था. लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न जो है ये चेंज होता गया. ठीक है, जो आपकी फैमिलीज हैं सबने न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया. इसमें क्या होता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो दूसरे सिटीज़ या फिर जगहों पे शिफ्ट कर जाती हैं. ओके, और आपके जो रिलेशनशिप है वो बने तो रहते हैं, लेकिन आप कब मिलते हैं? जब कोई फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, बर्थडे पार्टीज होती है, वेडिंग होती है, तब सब एक साथ मिलते हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. लेट्स नो The world's biggest family lives together in India, a man with 39 wives and 94 children. जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैमिली है वो इंडिया में है. एक मैन है जिसकी 39 wives है और 94 children है. ओके, There has been a change not only in the family patterns but also in the structure of the family. Women who used to stay indoors and look after the house and children are now educated, smart and professionally qualified. They get the support of their family in every field of life. They have attained success in every sphere be it politics, armed forces, engineering, medicine, etc. देखिए जो भी फैमिली पैटर्न्स हैं वो अब जाके चेंज हो चुके हैं मोस्टली. ठीक है, पहले के लोग क्या किया करते थे, जो मेल पर्सन्स होते थे वही सिर्फ अर्न करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो फीमेल है वो भी बाहर जाती हैं और अर्न करती है. तो हर एक फील्ड में विमेन जो है वो सक्सेसफुल है, चाहे वो पॉलिटिक हो, आर्म फोर्सेस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो. ओके, वैल्यूज टॉट बाय अ फैमिली.
We share many relations in our family. Our family is our school of life where we grow up with many values inculcated into us by our elders. These values help us to grow into good citizens of the country, and as good human beings, we learn to share things, extend a helping hand towards people in need, live with honesty and dignity, respect other castes and religion, love, affection and cooperation should always be maintained in a family, build a better society, work with dedication and honesty, be a good citizen and human being. देखिए, अब आप आपकी फैमिली से आपकी जो रिलेशंस है उसमें आपकी फैमिली आपको हेल्प करती है कि किस तरीके से एक गुड ह्यूमन बींग आप बन सकते हैं। आप में वो सारी की सारी चीज़ें इनकैलकुलेट करती है जिसके थ्रू आप एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपकी फैमिली होती है वो आपका पहला स्कूल होता है जहाँ पे आप ग्रो करते हैं और लर्न करते हैं चीज़ें। ओके, तो ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चीज़ें शेयर करना, ओके, कि कोई अगर नीडी है उसकी हेल्प करना, डिग्निटी और ऑनेस्टी के साथ रहना, ओके, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ काम करना, एक बेटर सोसाइटी बनाना, ओके, हमेशा लव अफेक्शन अपनी सोसाइटी में देना, ओके, उसके अलावा एक गुड सिटीजन और ह्यूमन बीइंग बनना। ठीक है, लेट्स नो A village in Rajasthan plants 3 trees every time a girl is born. देखिए, एक गांव है राजस्थान में, उसमें क्या होता है, जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो वो 3 पेड़ ग्रो करते हैं। ओके, सम अप, फैमिली सर्व्स एट द फर्स्ट स्कूल टू द चाइल्ड. We learn to socialize through our families and developed our intellect. The act of moving from one place to another is called migration. The people who migrate from country and go away to another country to settle there are called emigrants. Natural disaster plays an important role in family shifting. Heredity is the process in which one acquires biological characteristics from his parents. There has been a change not only in the family patterns but also in the structure of the family. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।